वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है। जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। जो आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है। जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है। जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। वो आ गई जो जिद पे तो नदी का रुख भी मोड़ेगी। जो ले लिया है एक बार प्रण वो करके छोड़ेगी। लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी डगर। न दर्द की उसे फिक्र, न चोट का ही कोई डर। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। Warm welcome to each one of you gathered here as we celebrate the spirit, strength and resilience of women around the world. On this special occasion of International Women's Day, let us come together to honor the achievements and contributions of women in every sphere of life. Wishing everyone a very happy International Women's Day. Today, I, Shriya Shukla, the President of Pragati Women's Development, you all for the speaker session on the topic Challenges of Language, Gender and Health in the 21st Century. Now my friend Jigyasa will let us know about our cell Pragati. यूजीसी मैंडेटेड बॉडी है। इस सेल को कॉलेज के अंदर जेंडर जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया है। हमारा लक्ष्य स्टूडेंट्स को जेंडर, सेक्सुअलिटी और विमेन एम्पावरमेंट के प्रति सक्रिय रूप से संवेदनशील बनाना है। इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए विमेन डेवलपमेंट सेल ने वेरियस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज, सेमिनार, वेबिनार्स एक्सेट्रा। Here are some glimpses on our previous events. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अतिथियों और अपनी माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। पूरे से आज्ञान उदगी से, पूरे से आज्ञान उदगी से। वीणा पानी तार दे। या मैम को
Whenever we do prayer, all of us rise. So I request everyone present to rise for the prayer. Thank you so much. ये सत्य अंत को हम सब में है, ईश्वर कर दो। हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना ये इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे। सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है, याद रहे। सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। और दलित साहित्य में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके कई प्रकाशनों में 11 किताबें और विभिन्न प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में लेख हैं। मैम also has MPhil and PhD degrees। उन्होंने अनेक छात्रों को उनके शोध प्रयासों में मार्गदर्शन किया है। अब मैं हमारी डॉक्टर नीतू गुप्ता मैम, हमारी कन्वीनर मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्रोफेसर मंजू मुकुल मैम का स्वागत करें। Welcoming Dr. Urvashi Mittal ma'am, a distinguished individual who has excelled in both academia and social service, with a background in MMS and CFA, along with an honorary doctorate in social service from California Public University. Urvashi ma'am's journey in service began with... Thank you, ma'am. It is an honor to welcome Dr. Sweta Balani, ma'am. Ma'am is a senior obstetrician, gynecologist and laparoscopic surgeon with 23 years of rich experience. She currently serves as the unit head in the Department of Obstetrics and Gynecology at Sant Pamanand Hospital in Delhi. Dr. Balani is a certified health camps and awareness talks focusing on adolescence and menopause, demonstrating her commitment to women's health and well-being. I would like to request Sunita ma'am to kindly felicitate and welcome her. Thank you, ma'am. Please join me in welcoming Ms. Gagandeep Ford, ma'am, who is a renowned, has more than 15 years of experience in the field of child and clinical psychology with diverse areas of expertise. She is the director of the organization called Unique Psychological Services that caters to various psychological needs. Now, let's delve into the significance of International Women's Day and its theme for 2024. Invest in Women, Accelerate Progress. International Women's Day, observed annually on contributions of women worldwide to society, culture and progress. The inaugural International Women's Day on March 8, 1917 marked an important moment when women in Petrograd, Russia bravely protested against escalating inflation, dire living conditions and the devastating toll of... Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा। वेलकम। रिस्पेक्ट प्रिंसिपल जी भी आई नहीं है पर मैं उनका संबोधन कर देती हूँ। प्रिंसिपल दौलत राम कॉलेज प्रोफेसर सविता रॉय, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सरिता नंदा, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 301 डॉक्टर उर्वशी मित्तल जी, स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर मंजू मुकुल जी, की नोट स्पीकर डॉक्टर श्वेता बलानी जी and Miss Gagandeep ji. It's with great pleasure and immense pride as the Inner Wheel Club of Delhi North District 301 in collaboration with Pragati Women's Development Cell celebrates International Inner Wheels Day at Daulat Ram College. This auspicious day occasion marks a significant to address the pressing issues that continue to shape our society. Our speaker session will delve into the multifaceted challenges of language, gender, health in the 21st century, a crucial
conversation that demands our attention and action. Furthermore, in our commitment to women's health and well-being, we aim to raise awareness about cervical cancer and advocate for preventive measures. By sensitizing our women about this disease, we strive to empower them with knowledge and resources to safeguard their health and future, flourish and fulfill her potential. Thank you, and let the celebration commence. Thank you. Thank you, ma'am. Now to begin with the event, I would like to request our very first speaker, Ms. Gagandeep Kaur ma'am, to come and please give her insights on the topic of challenges of language, health and gender in the 21st century. Thank you very much. I think I would rather love to talk while I walk. So I think thank you for giving me this platform. In fact, हम जब चलकर आ रहे थे तो मैम ने बोला कि आपको सुनना चाहेंगे. And I must say all of these are very very intelligent people. मुझे लगा मैं आप लोगों के सामने क्या ही बोलूँगी. I mean, honestly, that was the remark that I made. And standing here, I think makes me remind when I was sitting there where you are. And it was the first year of Women Developmental Cell in Daulatram College where I became the president. So I'm that age old and so happy with that. Yes, that was the first year and we were the ones, psychology department, and Rajni Singh ma'am and other people were there. And it was the psychology department that had started the Women's Cell. ऊपर वाली बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे कोने वाला जो सीढ़ियाँ चढ़कर रूम है, that's where the cell used to be there. So while I was walking through, it is a delight. And I think before I even make my talk, for the first time I've seen men folk among the women here. I think we need to give them a good round of applause. It makes me remind of a very beautiful story of Lord Shiva. और आज शिवरात्रि का भी समय है. I don't know आप में से कितने लोग जानते होंगे, दैत्यों की जो माँ है, वो विष्णु, वो इंद्रदेव की मौसी लगती है. भी बड़ी बात, वो नारी है. जो नारी का सम्मान नहीं करता है, उस व्यक्ति का सम्मान हो ही नहीं सकता है. बिकॉज जन्म देने वाली वो है. एंड आई थिंक मोर देन द मेन फोक, आई थिंक इट्स अ वुमन टू ब्लेम मोर. हम जब बैठ रहे थे तो वी वर ट्राइंग टू अकोमोडेट एंड व्हेन मैन सेड यू नो हमारी क्वालिटी होती है औरतों की अकोमोडेट करना. मैंने कहा हाँ, जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस भी होती है. बिकॉज हम ओवर अकोमोडेट करते हैं, हम कभी बाउंड्रीज ही नहीं ड्रॉ करते हैं. Isn't it? Look at your own lives. How many of you as daughters, sisters, and I'm sure wives, daughter-in-laws, now be you're lucky किसी के साथ कुछ नहीं हुआ. मेरे साथ भी हुआ है. यार जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं ना, बलिदान, त्याग, सैक्रिफाइस, यार आउट ऑफ जॉय हो, आउट ऑफ चॉइस हो तो मजा है. लेकिन unnecessarily you raise somebody at a pedestal और उसकी वाट लगा दो, तो ये कितना लॉजिकल है. And I think the choice to do whatever, and there is no harm. आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को पीछे रख के दूसरों के लिए भी कर सकते हैं. You cannot always be too self-centered. But there, as I said, there has to be a balance. And मेरा टॉपिक आज हैप्पीनेस को लेकर है. आप कृष्णा को मानती हैं, हम बात कर रहे थे. कृष्णा मेरे भी बहुत फेवरेट गॉड है. सभी के हैं, सभी हैं ही क्यूट से वो, मतलब. एंड कृष्णा का भी ऐसे एक एनेक्डोट है where and I'll tell you why I'm coming up with these. अगर आपको पता हो, जो 9 पूजा होती हैं, जो 9 रूप हम लक्ष्मी के पूजते हैं, राधा के कहने पर हुए थे. when Radha questions हमारा अस्तित्व क्या है. आप तो खैर ज़्यादा जानकार होंगे इन चीज़ों के. But I'm getting to hear the story first time. बताइए. Correct. So this is where, I mean, every god. How many of you often end up telling yourself, and let's be very honest, and we want to respond by tapping the feet. I'm idiot. मुझसे तो होगा ही. सही कहते हैं. मेरे बस का ही नहीं है यार. ये तो संभव ही नहीं है. इतनी बुद्धि नहीं है यार मेरे पास. I deserve this. अच्छा वो उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया. हो सकता है मेरे बॉयफ्रेंड को जो लड़कियाँ पसंद है, taking the woman more in majority, therefore putting that across, and I'm sure ऐसा आदमियों के साथ भी होता है.
इफ योर गर्लफ्रेंड एंड्स अप लाइकिंग समवन एल्स, हमें लगता है हम ही में कोई कमी हो। कितनों को लगता है? हमें नहीं, मतलब हमारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं ऐसा। Very honestly guys, how many of your friends whose boyfriends double dated felt maybe I am inferior, there's something wrong with me? देखा आया ना? कौन है और ना ही कोई नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, राधा कृष्ण तो हम बोल ही नहीं सकते, हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, so why even make that comparison? Everybody, thank you. Everybody has their own set of flaws, but the moment you make this conversation with yourself, कि यार मुझ में कमी होगी, maybe I'm not that sexy looking, maybe I'm not that beautiful, maybe I wasn't ready to sleep in the bed with that man, therefore he chose someone else. But remember guys, this kind of communication normally indicates that you're disrespecting your own existence, isn't it? अगर हम में 1000 कमियां हैं तो हमारे पार्टनर में भी होंगी, लेकिन अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई नहीं करेगा आपकी रिस्पेक्ट। एंड हमारा जो मुझे टॉपिक जो आज दिया गया था, दैट वाज हाउ कैन वी बिकम मोर हैप्पी, व्हाट इज द मंत्रा फॉर हैप्पीनेस। दैट मेक्स मी पुट अक्रॉस 2-3 क्वेश्चंस अगेन टू यू। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इश्यूज विद सम पार्ट ऑफ योर लुक्स, बाल, बॉडी, फिजिक, हम मोटे हो गए, हम वेट लॉस कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, हमें खाना पसंद नहीं है, हम कुछ इस तरह की कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। हैप्पीनेस कहाँ से आती है? चलो आगे 1-2 सवाल और करते हैं। कितने लोगों का एक ऐसा अतीत है जो बहुत खराब था, जिसके बारे में हम शायद कभी बात भी नहीं करना चाहते? Quite a number of us. How many of us feel यार अपनी किस्मत ही नहीं है उतनी अच्छी, यार somebody else is born with a better golden spoon? बतेरे लोग। अच्छा, कितनों को लगता है यार मेरे मन का, आज मैं मेट्रो में जब आ रही थी सुबह, since I was just rushing from here and there, last night I was in Mumbai and I just landed very late, 2 or 3 in the morning, and I've just been traveling and ऐसी मेट्रो में एक चल रहा था, आज शिवरात्रि है, प्रभु मेरी किस्मत में जो है वो ना देना, जो मेरे दिल में है उसे दे देना। कितनों को ऐसा लगता है? बहुतों को लगता है। पता है गाइस, ये तीनों आपके अनहैप्पी होने के सबसे बड़े कारण हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। 1, where does happiness comes from? Hare Krishna friends. Warm honorable greetings, dear club president Madhulata Gupta, esteemed panelists for the day, principal ma'am, Professor Manjul Mukul, Dr. Shweta, senior obstetrician, gynecologist and laparoscopy surgeon, Ms. Gagandeep Kaur, we just heard her. Health and Hygiene Committee chairperson, luckily this is how we go in our wheel, missing out on all of them. But supportive club members and these vibrant students. In fact, I came here as a clean slate. When Gagandeep was here, she said my topic was this, and my mind has been racing since then. हमारा topic क्या था? I've just been called and I was sitting there relaxed. हमारा तो last में number आएगा. I'll be asked to give my closing observation, closing remarks. But coming here at this point, that's really good. Friends, Rotary is an international organization mainly for men. Innerwheel is an international organization only for ladies. Rotary has few females also. We are only ladies. International organization. पहले Innerwheel खुला था for the wives and sisters and daughters and mothers of everyone. And the day we joined Innerwheel, our mantra is we are not in it for income. We are in it for outcome. Innerwheel is world's largest women voluntary service organization to give back to society. We are present in more than 100 countries with our representatives in United Nations also. जब बात हम पॉलिटिक्स की करते हैं and whenever you hear anyone talking,
तो वो आपको स्टैटिस्टिक्स देते हैं, हमने इतने एम्स बनाए, इतने स्कूल्स बनाए, इतने पेड़ लगाए, इतने डैम्स बनाए, इतनी रोड्स बनाई. सो दैट्स हाउ इवन इनरव्हील पुट्स एक्यूमुलेट्स ऑल द डेटा. जैसे हमारे शहरों में होता है, हमारे पहले हम सिविलियंस होते हैं, उनसे शहर बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, फिर स्टेट्स बनते हैं, फिर इंडिया बनता है. ऐसे ही हमारा एक मेंबर क्लब बनाता है, बहुत सारे क्लब से एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, और इंडिया में 27 इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट्स हैं. मैं आई आस्क यू, इंडिया में स्टेट्स कितनी हैं? एंड फ्यू यूनियन टेरिटरीज. सो ऑन दैट नोट, वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरव्हील इज बिगर देन स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे क्योंकि नाम तो अब हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स के नाम है, ये यूपी है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये बिहार है. स्टार्टेड इन लंदन. तो हमारे यहाँ 300 से नंबर चालू हैं. भगवान जी आप बीच में आ रहे हैं. सो वी गो लाइक 298 डिस्ट्रिक्ट, 298, 301, 302 and it goes on up to 329. Delhi and NCR area, right from Gurgaon, Faridabad, Rohtak, Sonipat, coming to this side Modinagar, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Hapur, Pilakwa, Shahadra. This is all district 301. So Delhi and NCR area. We have 3000 committed members. लेकिन ये बताइए, कई बार I've come across this situation many times. We say we are the like we are largest women volunteer service organization. Something happening. अच्छा, okay, you wanted to give me this. No, I'll go back to my place. Because I think I want to show my back to the parent. Organizations को blame किया जाता है. कहाँ है वो? क्या कर रही है? वो कहाँ पर है? दिल्ली की population कितनी है? More than a crore, around 1.5. I think इसको हम बंद कर देते हैं, दोनों ही को करना है. और हमारे इनरव्हील के members कितने हैं? 3000. If you talk of other charitable organizations, उनमें भी कुछ members हैं, but if you add up all, there will be few thousands or barely cross 1 lakh mark. तो समाज का भला करना हमारे ही square shoulders पे क्यों है? This is a burning question because now you are going to enter your practical life, and in fact on this note my heartfelt thank you to Club President Madhurika ji. हमारा जो district 301 है, इसके अंदर 101 club है. And this program has been organized by Innerville Club of Delhi North. आप अगर वहाँ स्टैंड पर देखें डिस्ट्रिक्ट 301 चार्टर नंबर, जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमारे इनरव्हील में जब क्लब पैदा होता है तो उसको चार्टर सर्टिफिकेट देते हैं. एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी सिर्फ एक माँ होती है, हमारे इनरव्हील में 3-4 माएँ होती है. किसने उसको इनिशिएट किया, कौन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी, कौन डिस्ट्रिक्ट द लेडी हु वाज जस्ट हेडिंग दैट पर्टिकुलर सेल. तो इसमें जब हम बात करते हैं, सॉरी आई जस्ट डाइग्रेस, यस, सो शी इज प्रेसिडेंट दिल्ली नॉर्थ और हम इन 101 क्लब की इस साल के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं. हमारा पॉलिटिक्स हमें टाइम देता है 5 साल के लिए रूल करने का, हम यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं. दिस इज एन ऑनगोइंग स्ट्रीम, बट ट्रस्ट मी दिस इज द स्ट्रेंथ. जब आप 1 साल के लिए हैं और आपको क्या इसके अंदर लेके आना है, दैट बिकम्स ऑल एनकम्पासिंग और बड़ा स्मूथ और फ्लॉलेस होता है. हर साल हमें एक इंटरनेशनल थीम दी जाती है. इस साल की हमारी थीम है शाइन ए लाइट, दैट इज टू ब्राइटन द लाइव्स ऑफ अदर्स एंड इट कवर्स मेंटल वेलनेस ऑल्सो. आजकल हम लोग सब तरह के एलिमेंट्स की बातें करते हैं. श्वेता जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताएंगे. आई नो फॉर लेडीज, फॉर गर्ल्स दैट्स रियली ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. हम सबको उसका पता होना चाहिए. और इनरव्हील कितने सालों से इसकी स्क्रीनिंग और एक्चुअल डोसेज के कैंप लगा रहा है संत परमानंद के साथ, जहां हम श्वेता जी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं. आप देखिए नोट कर रहे हैं, तो आई एम गेटिंग ऑथेंटिकेटेड द सेम टाइम. ऑन दिस नोट हम सिर्फ ये चाहते थे, मधु जी आई रियली वांटेड टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि जब हम, आपने सुना होगा ना कुएं का मेढक, जब हम कन्फाइनमेंट में काम करते हैं देन यू फेल टू इम्पैक्ट अदर्स. But what our work is about, myself with principal ma'am in that sense, talking about it, as she said, Gagandeep ji, जब उन्होंने कहा, she relived few years back when she was there. I thought she was talking about her student life in general. बाद में पता चला that she was from Daulat, from this college. लेकिन हम सभी schools, colleges में पढ़कर ही यहाँ पर आते हैं, और जब हमें वो टाइम दिया जाता है, जब हम आप लोगों से बातें करते हैं, like you know, what else, what more can you ask for? I'll keep going back and forth because I told you I came here like a clean slate. हमारा टॉपिक तो कुछ नहीं है, पर देश और समाज की सेवा करना ये सबसे बड़ा टॉपिक है. तो जब आप लोग अपनी एक्चुअल रोल्स में जाएंगे, here you are preparing for the roles. So when you will actually go to the roles and what those roles are going to be, 3
ETS का डायलॉग याद आ रहा है, जब अपना फ्रेंड बुरा करता है तो खराब लगता है, पर जब वो अपने से ज्यादा अच्छा करता है तो और खराब लगता है। Is it that? Will you all tap it and say that is the real psychology? But on this note हम सिर्फ यही कहेंगे, she was talking about happiness. I'll talk about contentment. हम लोग जब भी जाते हैं, like you know, we go everywhere to the 5 stars, to colleges and to झुग्गी झोपड़ी colonies, and the only thing which, like you know, which is universal, don't eye someone else's plate. Don't eye someone else's plate. क्योंकि जो कर्मास होते हैं, as you were also talking, that's actually true. Here I'll just tell you quick 2 minutes a small story. दो कौन बना रहा है, ये आदमी बना रहा है ना बना रहा है. We are just happy eating. So that is liberation. So basically this gender, like you know, even they are taking on roles which have been traditionally assigned to us. So again, it is not about competition. It's coming out of your comfort zone. Whatever you think you can do with ease, do that. अगर आपके लिए खाना बनाना डेरोगेटरी है तो उनके लिए खाना बनाना it's opening up a new forte for them. नई जगह तो कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है. Just do your duty with in a sincere manner and trust me, you'll have the life going. Then third, coming to health. Health actually, with the level of pollution setting in, with the life getting so complex, and with all of us making it so complex. In fact, I just wanted to say, if you are born with a silver spoon in your mouth, if you have everything going, then why do you not think of becoming social entrepreneurs? You invest your tan, man, dhan, society का भला करो. India में अभी it will take years for to come to a place where all of us can be called equal. अभी हमारे समाज में रिवाइज ही कर ले पॉइंट्स क्या क्या सिखा के गए हैं लोग. So I'm here to discuss about the challenges in 21st century about the health. And the greatest challenge which we are facing is the lifestyle diseases, and of which cancer is really hitting the list. And so today we will talk about cervical cancer. Anybody can tell me what is cervix? क्या समझते हो आप लोग cervix से? Anybody? कुछ भी जो पता है cervix? और ऊपर? Yes, कहाँ ठीक है? So cervix means neck, and when we are talking about this cervix which we are talking today is the neck of the womb. मतलब हमारे यूट्रस के नेक को cervix बोलते हैं. And if you can see in that figure, that is the position. The red portion is the cervix, just above the vagina and below the uterus. Next slide, please. So why are we talking about cervical cancer? क्योंकि ये this is the only cancer which we can eliminate. Eliminate मतलब जड़ से खत्म कर सकते हैं. और हम ऐसे क्यों कहते हैं कि हम ये cervix के कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं? Because next slide. Because this is the cancer which we can easily diagnose. This is the cancer which we know the cause. कि क्या किसी कैंसर का cause नहीं पता, but इस कैंसर का cause पता है. तो हमें पता है cause क्या है, तो हमारे पास इसका समाधान भी है. And सबसे अच्छी बात है कि this is a slow growing cancer, and because it is a slow growing cancer, it goes through a pre-cancer stage, and then the actual cancer we get time to treat, and when treated early ये बिल्कुल निजात मिल सकती है इस कैंसर से. Next slide. So if you look here that it is a preventable and a treatable cancer, and सबसे important चीज़ है कि in spite of me saying all these things कि ये preventable है, treatable है, फिर भी 6 lakh women are diagnosed of cervical cancer throughout the world, and of which nearly 50% are dying of this disease. Next slide. So every one woman is dying in every 8 minutes. हर 8 मिनट में जब तक ये टॉक खत्म होगी एक लेडी अपना जान खो चुकी होगी because of cervical cancer. And we know here the causative organ 99% cases में ये एक virus है which is a HPV virus. Their sexual life early in their age and who have other genital herpes kind of a thing, या जिनकी immunity weak है उनको ये वायरस घर कर जाता है and आपकी बॉडी में incorporate होके ये कैंसर करता है. नेक्स्ट स्लाइड. एंड ये जो कैंसर है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो जरूरी नहीं है किसी को प्रॉब्लम है तभी उसका टेस्ट कराएं.
क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हर किसी को ये टेस्ट लाइफ में 2 बार जरूर कराना चाहिए। और जैसे जैसे ये स्टेज आगे बढ़ती है लोगों को प्रॉब्लम होती है, टाइम टू टाइम हो रहा है, बट इन बिटवीन देयर स्टार्ट्स टू ब्लीड। एंड कई बार मीनोपॉज मतलब पीरियड खत्म हो चुका है बट ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो ब्लीडिंग के साथ आते हैं। कई बार सिर्फ फाउल स्मेल डिस्चार्ज होता है, कई बार बैकएक के साथ लेडीज प्रेजेंट करती हैं बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर, या फिर वेट लॉस होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट यहाँ मेरा एक आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि प्रॉब्लम हो तब जाएं, ये स्क्रीनिंग हर हेल्दी लेडी की एट 35 एंड 45 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। एंड आजकल क्योंकि हमें पता है कि इसका कारण क्या है, HPV वायरस, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। टीका, जैसे छोटे बच्चों को आप सबको लगा हुआ टीका है, तो आजकल इसका टीका अवेलेबल है जो कि ठीक है, रहमत समझ के। इन ब्रीफ मैं एक बार आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। इन ब्रीफ एक बार बताना चाहूँगी what a woman, what a lady, what a female goes through in her entire lifetime, ठीक है। Right from her birth, female feticide, infanticide, mutilation, then we have human trafficking, we have relationship issues, we have boyfriend-girlfriend issues, we have harassment, stalking, and then we have gender issues, gender discrimination, workplace पे issues होते हैं, salary में discrimination होते हैं, roles जो हमें दिए जाते हैं उनमें discrimination होते हैं, ठीक है। Then we have जब शादी हो जाती है domestic violence होता है, dowry होता है, और वो end तक menopause और post menopause सब continue रहता है। और इस बीच में हम request करते हैं और एक बार awareness भी फैलाते हैं मेन को कि इन सब के बीच में वी आर ऑल्सो डीलिंग विद हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स और किसी भी चीज़ को परसीव करने का तरीका बहुत बदल जाता है। किसी सिचुएशन से मैं कैसे डील कर रही हूँ वो नेसेसरी नहीं है कि एक छोटी बच्ची उससे वैसे ही डील करे, और एक बहुत ही मेच्योर वुमेन उससे वैसे ही डील करे, ठीक है। I believe the strongest creature इस अर्थ पे अगर कोई बना है तो it is a woman, ठीक है। We are the destroyers, we are the creatures। हम नर्चर भी करते हैं, हम पैदा भी करते हैं, और हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस एटीट्यूड को मैं चाहती हूँ हर लड़की, हर आदमी, हर बच्चा अपने जहन में बिठाए। मैं जहाँ जिस सीट पर आप सभी बैठे हैं मैं वहाँ भी रह चुकी हूँ, मैं हर स्टेज तक गुजर चुकी हूँ, और आज मैं यहाँ भी खड़ी हूँ। आप लोग के घर से लेकर कॉलेज तक आप लोग क्या फेस करते हैं उससे मैं बखूबी मैं परिचित हूँ, ठीक है। लॉज के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि लॉज बहुत हैं। पुलिस आपके लिए प्रेजेंट है, विमेन हेल्पलाइन आपके लिए प्रेजेंट है, इन सब में लेकिन ज़रूरी है कि हम तक रिपोर्ट हो क्राइम, ठीक है। I, on behalf of police department, would request you to be our eyes, be our ears, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरा कंसर्न नहीं है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है वो मेरा पर्सनल इशू नहीं है। अगर आप उसे रिपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम काउंसलिंग के तौर पर प्लीज़ उनसे इंटरैक्ट करें। मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग जब मेरे पास लेडीज़ आती हैं और बताती हैं कि मैडम सो एंड सो हैपेंड दिस एंड दैट गाय, वो मुझे ऐसा बोल रहा है और ऐसा हरास कर रहा है, उसने मुझे ऐसा टच किया, वैसा टच किया, ऐसे स्टॉक किया, वैसे देखा, एंड आई फील हेल्पलेस। ये जो हेल्पलेस वर्ड है ये मुझे हेल्पलेस कर देता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना एटीट्यूड विद टाइम उसे चेंज करें थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू अवेयरनेस, वो इट इज़ अप टू यू। जो चीज़ आपको जिस तरीके से ठीक लगता है वैसे करें, लेकिन ये एटीट्यूड चेंज होना बहुत ज़रूरी है।
अभी हमारे डीसीपी सर ने एक वामिका वैन भी लॉन्च करी है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इट इज़ फॉर योर सिक्योरिटी, योर सेफ्टी। अगर आप पुलिस स्टेशन पर आना रिपोर्ट करना कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, वामिका वैन पर जाएं, आपको 24/7 वहाँ स्टाफ अवेलेबल मिलेगा। प्लीज़ अपने ग्रीवेंसेस बताएं। ज़रूरी नहीं है आप थाने तक आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी। आप जैसी आपकी सहूलियत हो, जैसा आप ठीक समझेंगे, हम उसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि लॉज और हमारी प्रेजेंस का तब तक फ़ायदा ही नहीं है अगर वो आप तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि हम अपने भाइयों को, अपने फादर्स को और अपने छोटे भाइयों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करें, ठीक है। सबके पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि अपने पेरेंट्स से बात कर पाएँ, अपने फ्रेंड से बात करिए। अगर इन सब में से कोई भी नहीं मिलता है तो हम सिर्फ आपकी शिकायत लेने के लिए नहीं है, हम आपकी काउंसलिंग के लिए भी प्रेजेंट हैं। आप लोग हमेशा हमारा नंबर ले लीजिए, ठीक है। अगर आप फ़ोन पे बात करना कंफर्टेबल फील करते हैं आप तो आप फ़ोन पर आइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब से 5 साल में हमारा कोई स्पेसिफिक डे ना हो जब हमें अपनी एम्पावरमेंट के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ही एक डे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, विमेंस डे। और फिर आपको पता ही किस तरीके से ये लिया जाता है, ठीक है। जो मेरे पास मेल और मेरे कलीग्स आते हैं ना, हैप्पी वुमेन्स डे, और जो इस एटीट्यूड में बात की जाती है, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे से जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो उसे फेस करे। अभी बहुत सारी और हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बात करनी है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठना है। और वो हम कब उठेंगे? जब हम एक्सेप्ट कर लें कि अब वो जेंडर इक्वालिटी वाली फाइट अब जा चुकी है, अब वी आर टॉकिंग समथिंग डीपर, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पूछना चाहते हैं यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 24/7 आपको पुलिस स्टेशन मॉरिश नगर में अवेलेबल मिलूंगी। और नहीं, पर सच में जैसा उर्वशी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो हमारे बीच विश्व महिला दिवस पर जितने भी तमाम बॉयज बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो न सिर्फ बैठे हैं बल्कि इस तमाम चर्चा में पूरी तरीके से भागीदार हैं। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला होना सिर्फ एक शरीर नहीं है, एक सोच भी है। जब हम फेमिनिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो वो एक अप्रोच है, एक जीवन शैली है, एक जीने का तरीका है। शुरुआत से जो चर्चाएं चल रही थी, बड़ी खूबसूरत चर्चाएं चल रही थी कि हाँ सच में माइंड, बॉडी, सोल हर स्तर तक हम पहुंच गए, और माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों धरातलों पर जो एक चीज लगातार प्रवाहमान रहती है, प्रवाहित रहती है, वो है भाषा, है ना, लैंग्वेज और जेंडर। इस इशू पर, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, और मेरा मकसद आपको संबोधित करने का यही है कि मैं कुछ विचार सूत्र आपके बीच छोड़ जाऊं। दरअसल महिलाएं क्या हैं? ड्रीमर्स हैं ना। हम सपने देखते हैं, हम सपने संजोते हैं। अंग्रेजी में 2-3 वाक्य बड़े अच्छे हैं, टू अकॉम्प्लिश द ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट ऑल्सो ड्रीम, नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो बिलीव। हम जो सोचते हैं उस पर यकीन भी करते हैं, हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास भी है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लैंग्वेज और जेंडर पर काम करते समय सोशियोलिंग्विस्ट्स जब अमेरिकन लैंग्वेज फैमिली की कुछ भाषाओं पर रिसर्च कर रहे थे, तो वहां उन्होंने, कुछ यूरोपियंस जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी लैंग्वेज फैमिली है, एक ऐसा भाषिक समुदाय है जहां महिलाएं कुछ अलग भाषा का उपयोग कर रही हैं और पुरुष कुछ दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कैसे? महिलाओं और पुरुषों के
की भाषा क्या अलग अलग हो सकती है? जितने भी हमारे बीच लिटरेचर को पढ़ने वाले लोग हैं वो स्त्री भाषा पर बहुत बात करते हैं और काम करते हैं। तो क्या महिलाओं और पुरुषों की भाषा में कोई अंतर है? इस पॉइंट पर छोड़कर मैं थोड़ा सा चर्चा को और अलग लेके जाऊंगी। तो क्या आपने गौर किया है कि जितनी भी गालियां होती हैं समाज में वो सभी स्त्री केंद्रित होती हैं, है ना? और जो स्त्रियों से संबंधित बीच एक युद्ध हुआ, करीब भाषिक समुदाय, करीब भाषा बोलने वाले लोगों ने अवरत भाषा बोलने वाले समुदाय पर अधिकार स्थापित कर लिया, उन्हें युद्ध में हरा दिया, उनके पुरुषों को मार दिया और उनकी महिलाओं से जबरन विवाह तो कह सकते हैं पर उसकी बहुत सारी शेड्स हैं, कर लिया। अब वो बेबस महिलाएं, उनके हाथ में कुछ भी और नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाषा को हथियार बना लिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि ना हम इनकी भाषा बोलेंगे ना इन्हें हम अपनी भाषा सिखाएंगे। और ये एक इतना बड़ा आंदोलन निर्मित हुआ। Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon the esteemed principal. ठीक है। वो सारी नारियां ही हैं, वुमेन है। और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारे ही देश में हमें ये कहा जाता है कि वुमेन इज टू बी एम्पावर्ड। मैं तो कहती हूँ ऑलरेडी एम्पावर्ड है। क्या हमें कभी रिजर्वेशन मिली? 75 साल की आज़ादी में हम लोगों को रिजर्वेशन तो नहीं मिली। और भाई पार्लियामेंट में 33% की रिजर्वेशन की बात होती है तो मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हो गई मैम, नहीं देनी चाहिए। क्यों? वुमेन एक अभी कल एक मेल सज्जन से मेरी बात हो रही थी तो कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर भी रिजर्वेशन वहाँ पर भी, अब इक्वालिटी मांगती हो और चाइल्ड केयर लीव भी चाहिए, मैटरनिटी लीव भी चाहिए। तो मैं उनकी सोच में बड़ी हैरानी हो रही थी कि मैंने कहा कि अगर एक वुमेन चाइल्ड केयर लीव और मैटरनिटी लीव लेती है तो एक मेल को भी बर्थ देती है और एक फीमेल को भी बर्थ देती है। एक फैमिली की रिक्वायरमेंट भी है और हमारी जनरेशंस आगे को ग्रो कराती है। मर्द तो चाइल्ड केयर लीव, वुमेन अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो समझ लेना तुम लोगों का क्या होगा। बात ये है कि आप मैटरनिटी लीव दे करके वुमेन को एम्पावर नहीं कर रहे, अपने आप के लिए कर रहे हो। अगर नहीं दोगे तो जो संतानें पैदा होंगी वो विकृत, विकलांग, अच्छी ग्रोथ नहीं, खाने पीने को नहीं। क्या चाहते हो अगर जनरेशन तो कर लो। तो ये क्या कंपैरिजन? वे उसका जवाब मैंने यही दिया। मैंने कहा 75 साल की आज़ादी में आपने SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दे दी, अभी भी तो एम्पावर नहीं हुए। लेकिन पार्लियामेंट में देख लो, रिपब्लिक डे की परेड में देख लो, इस बार की रिपब्लिक डे परेड में 80% वुमेन कंटिजेंट, वुमेन कमांडर्स, वुमेन फोर्स। आर्मी में क्या कोई रिजर्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन में रिजर्वेशन है। आज आप कॉन्वोकेशन देखो, 90% विनर्स, प्राइज विनर्स, PhD होल्डर्स। हमारे में जो एम्पैथी है, हमारे में जो कंपैशन है, वो मेल फैकल्टी में भी होगी, मेल में भी होगी, लेकिन वो इतनी सोच से आगे नहीं ले जाते जितनी सोच और समझ से हम ले जाते हैं। बिकॉज वी हैव बीन एम्पावर्ड not only physically, emotionally, we are born this way. हमारी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उस वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सारी मुसीबतों का पार करते हुए भी वुमेन और मेन इक्वल परफॉर्म करते हैं, बल्कि आउटशाइन करते हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट है। अब CUET का रिजल्ट देखिए। ओके बिकॉज उसमें प्रिंसिपल मैम नहीं थी जब हम माइक पे थे। जैसा एज वी आर फ्रॉम इनर व्हील, आप में से कितनों के, बिकॉज यू आर पास्ट 12,
but you must be knowing wherever we apply abroad. So the first thing we need is certificates in social service. हमारे यहाँ अभी ये concept नहीं आया है. We are not bothered about social service. जब हम बाहर apply करते हैं after 12, and this is their requirement. This is mandatory. So then we run around to different NGOs. और तब हमें वो social certificates लेने होते हैं. So all the figures and everything is fabricated. क्योंकि तब आपको social service के certificates कौन देगा? जहाँ पर आपकी कोई approach होगी, जहाँ पे आपको कुछ जानने वाला होगा. So in our wheel, now this is an appeal to all of you. अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके friends के, relatives के, so just let them know. In our wheel is of women, by women, for everyone. I just told you, हम any act of charity is called project. So we work like wherever the need is felt, we stands there, whether it's planting, taking care of environment, planting trees, or this is taking care of senior citizen or women empowerment through skill training, actual women empowerment, or taking care of orphanages or visiting them. तो आपको कभी भी कहीं किसी को ऐसा लगता है कि हमें सोशल सर्विस का सर्टिफिकेट चाहिए. In our wheel clubs in Delhi, in our wheel club of Greater Kailash, in our wheel club of North, in our wheel club of Civil Lines, in our wheel club of Dwarka, in our wheel club of New Friends, mostly it's by the name of localities. तो आप वहाँ की प्रेसिडेंट को अप्रोच करिए, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर उनके साथ जिस भी NGO से वो एसोसिएटेड है, ग्राउंड रूट वहाँ पे जाके काम करिए. आपको इस सोशल सर्विस का जेन्युइन, ऑथेंटिक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा. थैंक यू. राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की प्रेरणा मुझे केवल और केवल हमारी प्रिंसिपल मैम से मिली. और इस कार्यक्रम का जो विषय है वो उस विषय की जहाँ जहाँ पोस्टर गया सबने तारीफ की. और ये विषय भी मैडम की ही देन रहा कि शुरुआत हुई थी हेल्थ अवेयरनेस से, कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हमारा महिलाओं का कॉलेज है और महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थ अवेयरनेस. हेल्थ ऐसा विषय है, हम अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य, वो सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट होता है. और उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है. और इस स्वास्थ्य के दो रूप जो मैंने आज के इस कार्यक्रम से समझे, वो ये है, एक तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य, एक शारीरिक स्वास्थ्य. ना तो हम मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और ना ही शारीरिक स्वास्थ्य पर. तो मैडम की ही प्रेरणा से आज ये हमारा कार्यक्रम हो पाया. Degree है, she will be employed and she will spread happiness among the employees also, which is infectious. तो मैं चाहती हूँ आप सबके साथ जब भी टाइम लगे, please enroll in that course. आज मैडम ने जो हम सबको समझाया उसके लिए मंजू मुकुल मैम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमें महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आज जो हमारी विशिष्ट जो हमारी चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता बलानी मैम, उनको बुलाने का श्रेय भी इनर व्हील क्लब की ओर से ही है. मधुलता मैम जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही कहा कि एक सर्वाइकल कैंसर पर एक टॉक करा लेते हैं, जैसे भी सुविधा हो, जब भी समय हो. तो क्योंकि ये अवेयरनेस है, अगर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बच्चों को नहीं पता होगा, महिलाओं को नहीं पता होगा, स्त्रियों को नहीं पता होगा, तो हम जागरूकता की बात कहाँ से करेंगे? क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है. और ये वो विषय है जो सारी बच्चियों को पता होना चाहिए. मैम ने जब श्वेता मैम ने बीच में पूछा कितने लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, एक हाथ भी नहीं था. और सोचकर मुझे भी अंदर से लग रहा था कि सचमुच ऐसे टॉक होने चाहिए. तो मैं इनर समझ नहीं पा रही हूँ कि पहले इनर व्हील क्लब का धन्यवाद करूँ कि श्वेता मैम का करूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक से जो गुरु गोविंद दो खड़े, कि किसका धन्यवाद करूँ, मधुलता मैम का या डॉक्टर उर्वशी मित्तल मैम का या श्वेता मैम का, क्योंकि इन्हीं का ही ये प्रेरणा रही कि आज का जो विषय है
विषय हम सब इससे परिचित हो सके। धन्यवाद इस रूप में करो कि सब लोग पिलाओ और अपना स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कराओ। हाँ, और आप लोगों के लिए मैम आभारी है प्रिंसिपल मैम का और नीतू का और सारे स्कूल के ये जो कॉलेज के कर्मचारी हैं जिन्होंने सारा अरेंज किया, स्टूडेंट्स का, प्रोफेसर्स का, फैकल्टी का, और आप सबका आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कर सकें।